کیا آپ نے اپنی لائف میں ایسے ڈیم کو دیکھا ہے جس ڈیم کے بالکل پاس ہی ایک ہول ہے اور اس ہول میں گرنے سے بہت سے لوگوں کی جان جا چکی ہے، اور یہ جو اتنا بڑا ڈیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک زندہ بوم کی طرح ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، اور اس ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد جو تباہی آئے گی اس تباہی کے بارے میں شاید آپ اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اور کیا آپ نے کبھی ایسا ڈیم دیکھا ہے جو پورے شہر بھر کے پانی کو کنٹرول کرتا ہو، اور وہ پورا ڈیم صرف کچی مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس ڈیم کی مٹی دھیرے دھیرے پانی میں گھلتی جا رہی ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ ڈینجرس ڈیمز کی لسٹ لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اور اسی ٹاپ 10 موسٹ ڈینجرس ڈیمز کی لسٹ میں انڈیا کا بھی ایسا ڈیم شامل ہے جو انڈیا کا سب سے بڑا ڈیم اور سب سے ڈینجرس ڈیم ہے، اور اس ڈیم کو نہ تو آپ نے کبھی کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کے بارے میں کہیں پر سنا ہوگا۔ آئی ٹیلر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 10 پر آتا ہے ہوور ڈیم۔ یہ ڈیم USA میں ہے جسے پہلے بولڈر ڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کنکریٹ سے بنایا گیا یہ ڈیم USA کا سب سے اونچا ڈیم ہے جسے کولاراڈو ریور پر بنایا گیا ہے جو کہ ایریزونا اسٹیٹ اور نیواڈا اسٹیٹ کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ ڈیم اوپر سے دیکھنے پر جتنا پتلا لگتا ہے اتنا پتلا یہ نیچے سے نہیں ہے۔ یہ ڈیم نیچے سے 656 فیٹ چوڑا ہے اور اوپر سے صرف 46 فیٹ چوڑا بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی ڈیم نیچے سے جتنا زیادہ چوڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ڈیم بنانے کا مطلب صرف پانی کو روکنا نہیں ہوتا، بلکہ پانی کو اچھی طرح سے یوز میں لانے کے لیے ڈیمز بنائے جاتے ہیں۔ پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے اور سنچائی کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے صرف اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے تاکہ پانی ویسٹ نہ ہو اور اس کا صحیح طریقے سے یوز ہو سکے۔ اگر پانی بنا ڈیم کے ایسے ہی بہتا رہے تو وہ نہ جانے کتنے کروڑوں لوگوں کی فصلیں تباہ کر دے، کیونکہ بنا ڈیم کے اگر کبھی باڑھ آ جائے تو اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر فصلیں اور شہر تو برباد ہوں گے ہی۔ ہوور ڈیم 726 فیٹ یا 221.4 میٹر اونچا ہے۔ اب یہ ڈیم کتنا زیادہ خطرناک ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم ٹوٹا تو صرف ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کی جان نہیں جائے گی بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان چلی جائے گی، اور اس خطرناک ڈیم کو کئی موویز میں ٹوٹتے ہوئے بھی دکھایا جا چکا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے المندرا ڈیم جو کہ اسپین میں موجود ہے۔ یہ اسپین کے سب سے اونچے ڈیم سٹرکچرز میں سے ایک ہے جسے ویلارینو دے لوس ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ڈیم کو 1963 اور 1977 کے درمیان ٹورمر ریور کے تیز بہاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ڈیم کے پیچھے جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 16.5 اسکوائر کلومیٹر ایریا کور کرتا ہے اور اس میں 2.5 بلین کیوبک میٹر پانی موجود ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس ڈیم کے ساتھ ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ کتنی زیادہ تباہی لا سکتی ہے۔ یہ ڈیم نیچے سے آدھا کلومیٹر تک چوڑا ہے اور اس کی ہائٹ 202 میٹر ہے۔ یہ ڈیم 810 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے جنگپنگ ڈیم جو کہ چائنا میں موجود ہے۔ چائنا جسے ڈیمز کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ چائنا میں تقریباً 80,000 سے بھی زیادہ ڈیمز موجود ہیں جو شاید کسی اور ملک کے چھوٹے بڑے ڈیمز کو ملا کر بھی اتنا نہ بنے۔ یہ جنگپنگ ڈیم یلونگ ریور پر بنایا گیا ہے۔ یہ ڈیم صرف چائنا کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز میں سے ایک ہے۔ بلینز ڈالرز خرچ کر کے بنایا گیا یہ ڈیم 305 میٹر یعنی 1000 فیٹ اونچا ہے اور اس کی لینتھ 568 میٹرز ہے۔ یہ ڈیم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی لارجسٹ ریورز میں سے ایک پر بنایا گیا ہے جو کہ بڑے ملکوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس ڈیم کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس پر 6 ملین لوگوں کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ چائنا کے بہت بڑے حصے کو بجلی پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیم بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ انجینئرز اس ڈیم کی سیفٹی کو لے کر کئی سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیم ایک زندہ بوم کی طرح ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے کریبا ڈیم جو کہ افریقہ میں موجود ہے۔ اس ڈیم کو زمبزی ریور پر بنایا گیا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن 1955 میں سٹارٹ ہوئی اور 1968 میں یہ ڈیم کمپلیٹ ہو گیا۔
इस करीबा डैम की हाइट 420 फीट तक ऊंची है, यानी 128 मीटर, और इसकी लेंथ 579 मीटर से ज़्यादा है, और ये लेक 185 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को होल्ड करती है। इस डैम का एक किनारा जिम्बाब्वे और दूसरा किनारा ज़ैम्बिया में आता है। इस डैम की मेंटेनेंस दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस डैम को रिपेयर ना किया गया तो ये डैम फेल हो सकता है, जिससे 3.5 मिलियन लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि ये लोग इस डैम पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। छठे नंबर पर आता है मोसूल डैम, जो कि इराक में मौजूद है। जब बात मोस्ट डेंजरस डैम्स की होती है तो मोसूल डैम का नाम आना लाजमी है। ये डैम देखने में उतना बड़ा नहीं लगता जितने आपने अभी तक देखे हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे खतरनाक डैम माना जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी डैम्स आपने देखे हैं वो ज़्यादातर कंक्रीट से बने हुए थे, लेकिन ये डैम सिर्फ कच्ची मिट्टी से बनाया गया है और ये मिट्टी रोजाना लहरों के साथ घुलती जा रही है। इसीलिए ये डैम इतना ज़्यादा खतरनाक है। ये कभी भी फेल हो सकता है। इसी वजह से इस डैम पर 24 घंटे रिपेयरिंग का काम बिना रुके चलता रहता है। इस डैम को 1986 में सद्दाम हुसैन के दौर में बनाया गया था और इमरजेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा डैम भी बनाया जा रहा था, ताकि अगर ये डैम अचानक फेल हो जाए तो पानी को रोका जा सके। लेकिन वो प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। इसका मतलब साफ है, जिस दिन ये डैम टूटा तो ये लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को अपने साथ ले डूबेगा। 5वें नंबर पर आता है इडुक्की डैम, केरला, जो कि इंडिया में मौजूद है। ये डैम इंडिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। इसे पेरियार रिवर पर बनाया गया है। ये डैम 3 डैम्स का सिस्टम्स है, जिनके मिलने से एक आर्टिफिशियल लेक तामीर हुई, जो 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस डैम में स्टोर किया गया पानी बिजली बनाने और सिंचाई के लिए यूज होता है। ये डैम 780 मेगावाट्स बिजली पैदा करता है। इसकी हाइट 168 मीटर्स यानी 554 फीट तक है और ये डैम 365 मीटर से ज़्यादा लंबी है। इंडिया का ये डैम जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर इस डैम में ज़रा सी भी गलती हुई तो ये ऐसा सैलाब लाएगा जहां हर तरफ सिर्फ तबाही होगी और बहुत से गांव पानी में डूब जाएंगे। नंबर 4 पर आता है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि चाइना में मौजूद है। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो 2.3 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहा जाता है कि इस डैम की तामीर से जमीन की रोटेशन में भी कमी आई है। 2006 में इस डैम के बनने के बाद इससे जुड़ी हुई कई अफवाहें सामने आती रही हैं। कहा जाता है कि इसने आसपास के एनवायरनमेंट पर बुरा असर डाला है। इसकी वजह से इस एरिया में लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि 2008 में चाइना में जो खतरनाक अर्थक्वेक आया, जिसमें 27,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसके पीछे ये डैम ही था। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हाल ही के सालों में ये डैम कई बार डेंजर लेवल से ऊपर भरते हुए भी देखा गया है। लेकिन इस डैम ने चाइना में बिजली पैदा करने के लिए कोल के इस्तेमाल को बहुत हद तक कम कर दिया है। तीसरे नंबर पर आता है मोंटी कैलो डैम, जो कि यूएसए में मौजूद है। ये डैम दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल डैम्स में से एक है। इसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। इस डैम की सबसे फेमस चीज़ है ग्लोरी होल, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकत में ये होल एक दोज़ख के दरवाजे जैसा है। इस होल में गिरकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तक जो भी इस होल में गिरा वो जिंदा वापस नहीं आया। इस होल के जरिए पानी रिलीज करके बिजली पैदा की जाती है। इस डैम की तामीर 1953 में स्टार्ट हुई और 1957 में कंप्लीट हुई। इस डैम की हाइट 304 फीट यानी 93 मीटर तक है और इसकी लेंथ 1023 फीट या 312 मीटर तक है। जब झील का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस डैम से 48,400 क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड निकाला जाता है। ये तब होता है जब पानी स्पिलवे से 15 फीट ऊपर चला जाता है। ये डैम साल भर में 56.8 मिलियन किलोवाट से ज़्यादा बिजली पैदा करता है। नंबर 2 पर आता है गॉर्डन डैम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ये डैम ऑस्ट्रेलिया की गॉर्डन रिवर पर बनाया गया है। ये डैम गॉर्डन रिवर के बहुत बड़े हिस्से का पानी होल्ड करता है। इस डैम की कंस्ट्रक्शन 1974 में स्टार्ट हुई और 1978 में कंप्लीट हुई।
इस डैम की हाइट 140 मीटर यानी 459 फीट तक है और ये 198 मीटर लंबी है। ऊपर से देखने पर यह डैम बहुत पतला लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पतली सी चीज को सिर्फ पानी का बहाव रोकने के लिए खड़ा कर दिया गया हो। लेकिन ये डैम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर चाहे कोई चीज कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक दिन वो खराब हो ही जाती है। अगर इस डैम में कहीं भी जरा सी भी दरार आ गई और ये डैम टूट गया तो ये आसपास के पूरे एरिया में भयानक तबाही मचा देगा। नंबर 1 पर आता है ग्रैंडी डिक्सेंस डैम, जो कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये डैम स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर डैम्स में से एक है। इसे जिस रिवर पर बनाया गया है उसी रिवर के नाम से जाना जाता है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी हाइट 300 मीटर के करीब है और इसकी लेंथ 380 मीटर्स तक है। इस डैम के बीच वॉकिंग और स्टंट्स के लिए भी रास्ता बनाया गया है, जहां बहुत से लोग आकर स्टंट्स करते हैं। ये डैम 1965 में कंप्लीट हुआ था। इसके बनने से पहले कई मुश्किलात सामने आई थी, लेकिन उन सब के बावजूद इस डैम को कंप्लीट कर लिया गया। ये डैम इतना पानी होल्ड कर सकता है कि इस डैम की किसी भी मशीन में छोटी सी भी खराबी आ जाए तो वो पूरे डैम को गिराने के लिए काफ़ी है। और डैम के गिरने के बाद जो तबाही होगी उसके बारे में आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इन टॉप 10 डैम्स में से आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस डैम कौन सा लगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।